the plane in 3D geometry. जनरली प्लेन होता क्या है? अब प्लेन इज अ सरफेस लाइक दिस, जैसे ये हमारा एक सरफेस है. प्लेन इज अ सरफेस, जैसे बोर्ड है ये, दैट इज लाइक अ सरफेस. सपोज ये मैंने सरफेस फॉर्म. If we take any 2 point on this surface, if we take any 2 point on this surface and join these 2 points, we get a line segment. तो हमको क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा. और on this line segment there are so many points. इस लाइन सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे. अगर ये सारे पॉइंट इस सरफेस पे लाई करेंगे तो देन दिस सरफेस इज कॉल्ड द प्लेन. तो हम इस सरफेस को प्लेन बोलते हैं. इट मींस द प्लेन इज अ सरफेस. ठीक. if you take any 2 point and draw a line segment joining these 2 points such that all the points on the line must lie on the surface, so then this surface is called the plane. तो हम इस सरफेस को प्लेन बोलते हैं कि अगर हम इस सरफेस पे कोई से 2 पॉइंट लेके उनको ज्वाइन करके अगर एक स्ट्रेट लाइन बना ले और उस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स हो सब उस सरफेस पे लाई करते हो, तो उस केस में वो जो सरफेस बनेगी दैट इज कॉल्ड द प्लेन. अब फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. The equation of the plane. What is the equation of the plane? Suppose let A be any point on the plane, on the surface, or we can say on the plane, whose position vector is E, and let N be a normal vector to this plane. That means N is a perpendicular vector to this plane. Suppose अगर हम बात करें it is a surface और N is this vector that is perpendicular to the plane. So then N is normal vector, ठीक, perpendicular vector to the plane. Let R be any vector on the plane and it is E. So then AP vector is perpendicular to N vector, or we know that AP vector is R vector minus A vector is perpendicular to N vector. और जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. ये जो बनी हमारे पास, दिस इज कॉल्ड the vector equation of the plane, or it also can be written as r dot n minus a dot n equal to 0, r dot n equal to a dot n, और a dot n is a constant quantity यानी scalar quantity. तो r dot n और इस स्केलर को मैंने d कंसीडर कर लिया. तो this is the equation of the plane when the plane is passing through a point whose position vector is A and the normal vector to this plane is N. So this is the equation of the plane in vector form. This is in vector form. हमने सपोज कर लिया है ये जो नॉर्मल वेक्टर है, let this vector be AI plus BJ plus CJ and this A vector be X1I, Y1J and Z1J. That is the position vector of this. A is X1I, Y1J, Z1K और N vector हमने ये कंसीडर कर लिया. N is the direction of the normal to the plane. So then if you put in this, or R is a general vector which is Xi plus Yj plus Zk dot N is AI plus Bj plus Ck equal to B. What is B? A dot N. That is X1I,
y1j z1k डॉट ai प्लस bj प्लस c। अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते तो वी गेट ax प्लस by प्लस c। और यहाँ की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसको हमने डी कंसीडर किया, और ax प्लस by प्लस cz प्लस डी, क्योंकि डी कांस्टेंट है तो इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो ये जो बनी है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो जो पहली थी वो वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, द सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, और ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म। नाउ अगर हम इसको इस फॉर्मेट में रख देते हैं तो हमारे पास क्या बनता, x माइनस x1 a b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, यानी ये चीज यही लिखी है जो मैंने आपको लिखी। ठीक, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट व्हिच इज x1 y1 एंड z1, और a b c are the ratios of the normal to the plane. A, B, C are direction ratios of the normal to the plane. तो अगर हमको फाइंड आउट करनी है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड is perpendicular to a given vector, yeah, the normal vector of the plane is n, so then the equation of the plane is r minus a dot n, or it can be written as r dot n equal to a dot n, या r dot n equal to d। और कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखनी हो तो दिस इज द इक्वेशन, if we put the value of a b c so we get the equation of the type ax plus by plus cz plus d equal to 0। इस टाइप की इक्वेशन हमको मिल। Now the next is equation of the plane passing through three given points। अगर हमारे पास एक प्लेन पे 3 पॉइंट्स हो तो how would we find the equation of the plane? अगर suppose on a plane, this is the plane, let A, B, C be are 3 points on this plane whose position vectors are A, B and C, then the equation of the plane is r minus a dot b minus a cross c minus a इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनी कैसे, ठीक है ना। अगर a b c 3 वेक्टर एक प्लेन के ऊपर है तो दैट मींस दीस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो वेक्टर्स कैसे हैं, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो वेक्टर क्या बन गया हमारे, कोप्लेनर हो गए। दैट मींस लेट P be any general point on this whose position vector is r, so we have 4 vectors which are coplanar, यानी P, A, B, C are coplanar। और इन वेक्टर से अगर 3 वेक्टर बना लें, that is P A वेक्टर या A B वेक्टर, B A वेक्टर and C A वेक्टर, तो these 3 vectors are coplanar। अगर ये कोप्लेनर होते हैं तो देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। दैट मींस AP डॉट BA क्रॉस CA मस्ट बी इक्वल टू 0। तो AP इज R minus A डॉट BA इज या AB इज B minus A और CA इज C minus A, या AC भी लिख सकते हैं हम इसको, डायरेक्शन में चेंज आएगा बाकी सेम एज इट इज। तो दिस इज
the equation of the plane passing through three given points. अगर हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो जो थ्री गिवन पॉइंट से पास होता है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point 2, -1, 0, 3, -4, 5 and 1, 1, 0. 1, 1, -1. Find the equation of the plane passing through these three given points 2, -1, 0, 3, -4, 5, 1, 1, -1. अब हमें इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट की फॉर्मेट में है तो हम वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. तो पहले हम वेक्टर इक्वेशन की बात करें. लेट दिस पॉइंट बी ए बी सी, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज ए व्हिच इज 2i -j plus 0k, and the position vector B that is 3i minus 4j plus 5k, and the position vector C which is I plus j minus k. तो A B C is the vector. अब अगर हमारे पास थ्री वेक्टर A B C हो तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके इक्वल है? R minus A dot B minus A cross C minus A equal to 0. तो पहले हमको क्या क्या चाहिए? B minus A. तो B minus A is this minus this and I minus 3j plus 5. C minus A which is minus I plus 2j minus k, and R minus A is R is xi plus yj plus zk, so x minus 2i plus y minus 1j plus z minus 0k. So this is R minus A. So we have B minus A, C minus A and R minus A, और ये तीनों वेक्टर क्या है हमारे? कोप्लेनर है, यानी इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? द डिटरमिनेंट ऑफ these three वेक्टर, यानी x minus 2, y minus 1, z minus 1. B minus A which is 1, minus 3, 5, और C minus that is minus 1, 2, minus 1. अब इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो निकालते हैं. दैट इज 3 minus 10 minus y minus 1 which is minus 1 plus 5 plus z minus 0, 2 minus 3 equal to 0. So that is minus 7x minus 4y minus z and plus 14 और minus minus plus 4, 18 plus 18 equal to 0. So that is 7x plus 4y plus z minus 18 equal to 0 is the equation of the plane which passes through three given point A, B and C. जो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन है वो क्या बनेगी? 7x plus 4y plus z minus 18. This Cartesian equation can also be converted into vector equation which is r dot 7i plus 4j 4k j plus k
minus 18 equal to 0. So this is the vector form of the equation. Let us take another example. Find the equation of the plane passing through the points 2, 1, minus 1, 3, 2, 4 and 7, 9, minus 1. Find the equation of the plane passing through these three given points. यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके जो भी हमने किया। अब इसको थोड़ा एक डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक? अब we know that the equation of the plane passing through the point 2, 1, minus 1. हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकालनी है पासिंग थ्रू 2, 1, minus 1. हमें पता है कि अगर एक पॉइंट से कोई प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0, where a, b, c are the direction ratios of the normal to the plane. अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी which passing through this point. ये हमने कंसीडर कर लिया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. अगर प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो यानी दिस प्लेन आल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट और दिस प्लेन इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो ये जो प्लेन होगा ये इस पॉइंट से भी पास होगा, ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास होगा. तो जब ये प्लेन इस पॉइंट से पास होगा तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो देन वैल्यू ऑफ a अगर हम रखते हैं तो वैल्यू ऑफ x3 minus 2 plus b 2 minus 1 plus c 4 plus 1 equal to 0. So we get a plus b plus 5c equal to 0. So again it also passes through this point. So we get 5a plus 8b and 0c equal to 0. अब टू इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करके हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यूज कौन सा मेथड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ए में पहले इसको हमने हटा लिया, देन वी गेट 0 minus 40, बी में 0 minus 25, सी में 8 minus 1. So we get a upon minus 40, b upon 25 और c upon 3 और let it be equal to plane. तो a b c की हमारे पास वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, वो हम सीधा इसमें पुट कर देते हैं. क्या बनेगा? -40 लैम्डा x minus 2 plus 25 लैम्डा y minus 1 plus 3 lambda z plus 1 equal to 0. lambda कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया तो we get -40x plus 25y plus 3z plus 80 minus 25 plus 55 plus 55 और plus 3 58 equal to 0. So this is the equation of the plane passing through these given points. जो इन पॉइंट से पास होती है उस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. अब कई बार कोई ये भी कह देता है कि प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, कि हमें कोई 4 पॉइंट दे रखे हैं और हमें उन्हें कोप्लेनर प्रूव करना हो. तो एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने फॉर्मूला बनाया, वेक्टर फॉर्मूला बनाया था कि 4 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखा सकते हैं. बट कई बार वो क्या कहता है कि प्रूव दैट दीस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर,
ये 4 पॉइंट जो है कोप्लेनर है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और साथ में एक चीज और कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी निकालो जिस पर वो 4 पॉइंट लाई करते हैं। जब हमने कहा कि 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो जिस प्लेन पे वो लाई करेंगे तो कह रहा है उसकी इक्वेशन में निकालो। तो यही अगर मैं एक पॉइंट और बना लूं, ये बना लेते हैं 1 0 माइनस, ये 4 पॉइंट हमें कोप्लेनर को, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट से हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। अगर ये 4 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तब तो हम कहेंगे क्या पॉइंट्स कोप्लेनर है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये 4 के 4 पॉइंट कोप्लेनर नहीं है। तो रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -40 ये 0 हो गया, -18 प्लस 58, तो -58 प्लस 58 इक्वल टू 0। So that means if 1 0 minus 6 satisfy the equation of the plane, so that means these 4 points are coplanar। तो ये जो 4 पॉइंट है वो हमारे कोप्लेनर हो गए। Now the next is equation of the plane। Passing through one given point and जो नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास that is a unit vector, that means normal vector is unit vector। हमने सपोज कर लिया this is a plane which passes through a point P, point A whose position vector is A, and जो normal है that is a unit vector। The normal vector is a unit vector। अब ये पहले हमने L लिया था, that is not a unit, but ये unit vector है। जब ये unit vector है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो हमने इसको ये कंसीडर किया L, M and N, where L, M and N are the direction cosine of the normal to this plane। अब हम डायरेक्शन रेशियो की जगह वर्ड यूज करें डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन बनाई थी। अब इन प्लेस ऑफ n हमने n कैप कर लिया इसमें, ठीक। तो वी गेट r डॉट n कैप इक्वल टू a वेक्टर डॉट n कैप, और r डॉट n कैप इक्वल टू, इसको हमने कंसीडर कर लिया p, और दैट इज p इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने बनाई, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दैट मींस अगर n को मैं वैल्यू रख दूं li प्लस mj प्लस mk, तो इक्वेशन ये बनेगी इक्वल टू where p is the perpendicular distance from the origin to the plane। तो अगर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में ये है तो p क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, यानी कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी कह रहा है इस प्लेन को आपने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, यानी इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म। अब ये जो है ये a b c की वैल्यू है, और यहां से हमें किस में कन्वर्ट करना है, l m एंड n। a b c को एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया बाय डिवाइडिंग रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया इससे। √29 से हमने डिवाइड किया, 2/√29 x, 3/√29 y, 4/√29 z equal to 6/√29. So this is the equation of the plane in normal form. तो perpendicular distance from the origin क्या बन गया? 6/√29. तो कई बार ये बोलेगा मैं कि प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। कि अगर ओरिजिन से प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? तो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6/√29. तो कन्वर्ट द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म और जो p की वैल्यू आएगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर p नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे क्योंकि इट इज अ डिस्टेंस। अभी आगे जैसे हम टॉपिक में बढ़ेंगे तो आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a particular point on a plane. Next form of the plane is that is the intercept form of the plane. Intercept form. अगर सपोज हमारे पास ये प्लेन, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। Let this be a plane. ये प्लेन इस टाइप का है कि जो एक्स एक्सिस को इस प्लेन का पॉइंट टच करता है उसको हमने ए कंसीडर कर लिया, जो वाई को करता है बी और इसको करता है सी, और इट इज एट ए डिस्टेंस ए और इट इज एट ए डिस्टेंस बी और इट इज एट ए डिस्टेंस सी। तो यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? a 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0 और सी के कोऑर्डिनेट 0 0 सी। तो अब यानी हमारे पास जो प्लेन हमने बनाया एबीसी प्लेन, ये 3 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। दैट इज ए whose equation is whose coordinate is a 0 0, b whose coordinates are 0 b 0 and c whose coordinates are 0 0 c। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन किए थे तो हमने 3 पॉइंट से पास होने प्लेन की इक्वेशन निकाली। तो ऐसे ही अगर इन 3 पॉइंट से पास होने वाले हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आएगी। This. So this is the equation of the plane in intercept form. तो ये जो प्लेन की इक्वेशन हमने बनाई, अब बनाने का तरीका वही है। ये 3 पॉइंट हमारे पास है तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन देखो बना लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a 0 0। अब मैंने कैपिटल ए ले लिया डायरेक्शन रेशियो को, x माइनस a प्लस b y माइनस 0 प्लस c z माइनस 0। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0 b 0। तो क्या बनेगा जब 0 रखेंगे तो माइनस a a, b रखा b b और 0 रखा 0 c। दैट इज x माइनस, हाँ ठीक हो कर। अब हमने ये रखा 0 रखा तो माइनस a a, 0 रखा 0 b और c रखा c और स्मॉल c। इनको अगर हम सोल्व करें a अपॉन माइनस b अपॉन और c अपॉन तो bc बनेगा, यहां पर ac बनेगा माइनस का और यहां पर ab बनेगा प्लस। सेम वही आ गया। अब एबीसी की जगह डायरेक्ट पुट कर देता है बस। तो बीसी एक्स माइनस ए, AC y माइनस 0, AB z माइनस 0 इक्वल टू 0। यहां से क्या बन गया BCX
AC Y, AB Z और माइनस ABC जो हम इधर देंगे ABC। ABC से डिवाइड किया x अपॉन A, y अपॉन B, z upon c equal to 1. So this is the equation of the plane passing through three given point, यानी हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे बिकॉज क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे a डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कट करता है, y पे b और z पे c. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म where a b c are the intercept on x, y and z axis. तो जो इंटरसेप्ट है वो x, y and z एक्सिस पे a b c है. तो आज इतना ही, कल हम इससे आगे का पार्ट करेंगे.